simple. आपको लगेगा as if you are taking a BP. And I'm telling you, I work for Government of India and CI, and we are exporting a lot of nurses to the 40 countries को हम भेज रहे हैं. If you can read an ABG, na, your salary goes up by 30-40% high. That is on 30-40% high. If they will give you ABG in international ICUs in UAE, Qatar, Germany, fantastic jobs are available. I can connect you to the. I don't want people should live it, but this is one topic. Sir ने बोला है. It is something like ABG is your lung function test. ABG is your you can say ICU ka basic thing. ABG decides what will you the progress of the patient, and it is such a simple thing. People think it's very scary. No, it's very simple. It's as simple as oximetry. And son, now we have an oximetry available. If you understand basics of ABG, I'm telling you, wherever you will work, whether in SSB or in the best hospitals, people will look up to you. Wow, इसको ना ABG आता है. You will rule, I'm telling you. And that is what we say that when we talk of empowering nurses, these are the few things if you're good. If you're good in non-invasive ventilation, if you're good in ventilation, if you're good in ABG, you're empowered. People will look up to you. Am I right? He has worked in international hospital. I have an experience in international hospital. These are the few things. If you're good at, people will look up to you. If you can read a basic ECG, X-ray chest, ventilation, non-invasive, and 5 things if you are good. ABG, non-invasive ventilation, ECG, and X-ray chest. You are super. And I'm telling you, I can bet even the best doctors who have done dental medicine, with due respect, cannot match you the way me and Dr. Sanjeev is going to teach you. I've worked in different intensive care. ABG देख के ठीक है मतलब. So what I'm going to speak with you is that, when we talk of ABG, सबसे पहले I need a volunteer. आप आइए. Stand here. Look, the most important thing ABG का क्या है is arterial blood gas. That means the sample has to be arterial. The main fault happens, people take from venous samples, patient pay for 1,000, 12 or 1,500 rupees, they say नहीं ये तो गलत हो गया. So that means you have to hit the artery, not the vein. अच्छा, अब आर्टरी क्या है? आपके पास यहाँ लालनर आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है. आप फेमोरल में भी जा सकते हैं, बट फेमोरल को आप चेक नहीं कर सकते हैं. Now, when we take the sample from hand, आपको पता है ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल एंड अल्नर, इनमें से लोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है? I have not seen here people practicing even in most of the hospitals in India, but in West, if you are doing ABG without doing Allen's test, you would be thrown out of the ICU. Do you know what is an Allen's test? Allen's test means what happens? People who are coming in, elderly people, because normally ICU is basically for sick people and elderly people. Their elderly people's arteries are already atherosclerosed. Many times what happens, you're pricking an artery, they can go into the Raynaud's phenomenon and cyanosis, they can lose the limb. तो आपको चेकअप करना है, whenever you're pricking an artery, दूसरे तरफ से circulation ठीक है कि नहीं ला. Hand has got 2 circulation, ulnar circulation, radial circulation, ulnar. If you're pricking, you should check it up whether the other side is giving you this is called Allen test. Now, what is Allen test? The first thing in ABG is that always check Allen test. Now, you look here. हाथ ऐसे करो. खून आना मतलब है when the blood is coming is red. Now, मुट्ठी बंद करो. I have blocked ulnar artery and radial artery. मुट्ठी खोलो. Now, मैं ये छोड़ा, दोनों तरफ लाल हो गया. इसको बंद किया, दोनों तरफ. इसके मतलब अल्नर एंड रेडियल आर्टरी के अंदर अच्छे कोलैटरल्स है. विल यू डू इट? प्लीज डू इट. कम एंड शो इट. हाउ विल यू डू इट? एवरीबॉडी विल डू Allen टेस्ट. Allen टेस्ट, ALLEN. आप लिखो Allen टेस्ट. डू इट. Allen टेस्ट. Why? First you explain
After 3 or 4 months, you are the teacher. She will be the teacher. She will be the teacher. We will all sit there and listen to you. Now, the way I spoke, explain everybody why Allen test is required. Take off your mask and speak. Why Allen test? You will say like this. I'll repeat again. Arterial, this is how we'll say why Allen test is required. He said normally arterial blood gases, that means taking a sample from artery, not vein. So it should not be a venous sample. It should be a arterial sample. And arterial sample will decide whether the patient needs ventilation, non-invasive or invasive ventilation. So to ensure artery, so that means first we have to hit the artery. Now before artery you hit, you should know whether artery is healthy or not. If the artery is unhealthy, this man will take you to the court. मेरा हाथ खराब कर दिया. So what you have to do, you know, it has got two branches, ulnar side and radial. This is called ulnar artery and radial artery. And now he has got, आपने मुट्ठी बंद करी, close your fist, बंद करो, खोलो, नहीं है ब्लड, ये खोला, पूरा लाल हो गया ना, इसके मतलब यहाँ और यहाँ का ब्रांचेस है, फिर बंद करो. So that means Allen's test positive. Then you will go it. Now do it. This is real learning, hands on. अभी हम जो अभी आज पढ़ाएंगे, अभी जी ऐसा नहीं, आज हम जाके बेड साइड में नेक्स्ट टाइम मैं और डॉक्टर संजीव बेड साइड में हम. Now do it Allen test. Explain everybody. Louder, louder. एक टीचर की आवाज ऊंची होनी चाहिए. Before taking EBG blood sample, we have to check the Artery. Whether the circulation between ulnar and radial artery is healthy or not. So first make a fist. Make a fist. Press both the band. Open up the fist. ना एक छोड़ो. Red आ गया. Close it. छोड़ो दूसरा. Come here and do it. Learn. If I am teaching you, if you are getting teachers like me, it should be your learning. मुट्ठी करो. कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में. आपको नहीं लग रहा कि मैं सुबह उठ के मुझे ऐसी चीज सीखने को मिला. आई एम सेविंग इन हैंड. आप बताओ, व्हाट गिव्स मी ऑक्यूपेशन, दिस हैंड ना. अगर मेरी हैंड चला जाए तो मैं बेरोजगार हो गया ना. हाउ इंपॉर्टेंट इज एन हैंड. हैंड इज एवरीथिंग. इसी हैंड से आप ड्राइव करते हो, इसी हैंड से खाना कहते हो. सो इट्स नॉट, डोंट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट. हमारे देश में एथिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है बिकॉज वी आर ए पुअर कंट्री. But our country is going to rule the country because it's a young country. Our students are going to work in the world. World has become very old. The future belongs to you. आप देखना अगले 5 साल में आप लोगों को क्या opportunities मिलता है. Because India is the only young country. It is going to support America, Russia, Europe, UAE. So you have to be internationally qualified. Am I right? Yes, sir. And there's nothing wrong. It's not rocket science. आप किसी का हाथ देख रहे हो. So a good job of a good nurse is to be good to the patient. You should not harm the patient. You know, Dr. Sanjeev and me and Dr. Shoini have been struggling with one patient who comes and shouts and says that मेरा हाथ खराब कर दिया. You remember? Yes. Simple thing. Your 50% of time gets wasted on these stupid discussions. We have to be ethical. We have to be rational and we have to be good to the patient. So first thing is that, will you all do Allen test? Yes. Will you tell your other friends that Dr. Bose and Dr. Sanjeev taught us Allen test? Yes. आज अगर मेरी ABG क्लास में आपको ये भी मैं सिखा दिया ना, मेरा जो 30 साल का जो मेहनत है ना, वो सफल हो गया. मैंने देश को बदल दिया. कोई भी Allen test करके ABG लेना है. अब देखो, अब मैं जूली को बुला रहा हूँ. जूली, अब देखो जूली, मान लो जूली का एबीजी कर रहा है. जूली का हाथ एकदम लाल है. अब जूली का यहां से, जूली मुट्ठी बंद करो. दोनों बंद कर दिया. मुट्ठी खोलो. नहीं है, अब मुट्ठी बंद करो. खोला मैंने, रेडियल साइड पूरा लाल हो गया. मुट्ठी बंद करो. ये खोला, खोलो. इसके मतलब इसके कोलैटरल्स दोनों के बहुत अच्छे हैं.
यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा सीख है? तो सबसे पहले बच्चे, कोई भी चीज जिंदगी में सीखोगे उसको सही तरीके से करना होता है। अगर आप रोटी बनाना भी सीखोगे, लर्न द राइट वे। ड्राइविंग भी करोगे, राइट द राइट वे। रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग करोगे वैसे ही चलेगा। कई लोग होते हैं बहुत सीनियर हो जाते, नहीं हमने तो ऐसा ही किया था। तुमने जैसे किया था किताब तरीके से। इफ यू सी हाउ आई कंडक्ट, आई फॉलो, आई एम ए रूल मैन। मैं रूल बुक फॉलो करता हूं इन माई लाइफ स्टाइल, हर चीज रूल है मेरे जिंदगी में। सो रूल बुक तो एलन टेस्ट करोगे। अच्छा, दूसरा, अब आप आओ। ये बच्ची आई है हमारे पास, मान लो इसके हम एबीजी कर रहे हैं, एलन टेस्ट आपने देखिया। अब इसको दर्द देना चाहिए। पेन इज अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ना। आपने कभी देखा खच 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 कर रहे हो? हाँ, करके देखो आप। वो बोलता कुछ नहीं, हमारा देश कोई कंप्लेन नहीं करता। अच्छा है। सो फर्स्ट सेकंड थिंग इज दैट जो लोकल, सबसे डाइल्यूटेड लोकल लोग है, ये जो आर्टरी का जो सबसे बाहर एरिया, उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं ना, उसको एनेस्थेसाइज करोगे। बहुत इजी है। सो आप समझोगे ना। कैन एनीबडी ब्रिंग ए नीडल एंड सिरिंज? हाँ है, ठीक है ठीक है। इसमें लोकल डालो। आप देखोगे जिस दिन आप ये 2 रूल फॉलो करोगे, आप अगर 25 साल एबीजी नहीं भी किया, अगले दिन ठीक करोगे। सो ऑलवेज द सेकेंड थिंग व्हाट यू, या प्लीज, या For like normal conscious patient, we are doing analysis. What about for the venting patient, like mentally conscious? same. No, I mean if there is sedation, if they can. No, then they cannot do it. That is a different thing. There still you can see the BP at least now. BP is going or not. पर आप दोनों को no. Suppose come here. She has asked a very pertinent question. Patient ventilator में है. आओ बेटे आओ. Come. I'll teach you. She is asking me a very pertinent question. Huh? You know, whenever you touch a lady, you have to take permission. I'm touching you. Am I? Yes. So what I'm doing is that वो अनकॉन्शियस है, वेंटिलेटर में है, आपने बंद कर दिया, रेड वाइट हो गया, छोड़ दो, यू आर अनकॉन्शियस, दिस इज ऑल वाइट, देन आई विल रिलीज दिस Okay. रेड, आई प्रेस दिस. Okay. So even in unconscious patient, Allen series can be done. He cannot make the fist, but you can block both the arteries, na? So Allen test करना है, ठीक है? It's okay? It's clear? Please sit down. What's your name? Sonia. So Allen test करना है. अच्छा, अब देखो लोकल डाला इसमें, थोड़ा सा लोकल डालना है, इतना. हाँ, अब देखो बेटे, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जब भी एबीजी करोगे, दिस कॉल्ड मिड प्रोन पोजीशन. मिड प्रोन ऐसे, ऐसा याद रहेगा. हाउ विल यू, व्हाट इज प्रोन? बेगर्स प्रोन, किंग सुपाइन, मतलब राजा देता है, भिखारी लेता है. तो दिस इज प्रोन. प्रोनेशन दिस इज. तो मिड प्रोन. तो आप क्या करोगे? कम हियर बेटे, यहाँ जस्ट सपोज यू कम दैट साइड. एक छोटा सा रोल शीट लोगे. कोई किसी के पास टॉवल शीट है? हाँ. अब थोड़ा सा नीचे बैठने की कोशिश करो. यू सी, विल यू डू इट? मिड प्रोन. कभी भी वेनस सैंपल नहीं होगा, बिकॉज बाय डूइंग दिस आपने आर्टरी को ओपन कर दिया. सो सेकेंड थिंग इज दैट मिड प्रोन. तो एक छोटा सा रोल रख लो. ये जो खच 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 मैं देखता हूं ना, इमेजिन योर पेरेंट्स आर एडमिटेड, हाउ बैड यू फील. सो मिड प्रोन, ऐसा मिड प्रोन. व्हाट यू कॉल मिड प्रोन. And you can do a mid prone. This is a wonderful thing. Or you can have a towel sheets. This is also good. Okay. Third is, नहीं, पहले mid prone करके फिर एनेस्थीसिया दो. ये थर्ड है.
ठीक है ना? अब ये 3 चीज अगर आपने कर लिया ना, इट इज एबीजी इज समथिंग लाइक टेकिंग ए बीपी. क्यों डॉक्टर संजीव? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. This is how I've been taught. So, will you repeat? What will you, the first thing you will do? Allen test. What is the second thing you will do? Mid-prone. Third thing is that खड़े खड़े नहीं करोगे, उसको इज्जत दो, उसके साथ बैठो. ऐसे खड़े के करोगे तो कैसे होगा? Needle should be at the level of the bed. बैठ के करो. Sit and do. Sit at the level of the patient. Bed is normally at 3 feet. आप एक स्टूल लेके बैठ सकते हो. मैं देखता हूं खड़े होकर ऐसे ऐसे करते रहते. दिस इज नॉट डन. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन मेडिकल प्रैक्टिस द डिग्निटी एंड द ग्रेस. यू हैव टू रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्निटी इज द पेन. यू कैन नॉट इन्फ्लिक्ट पेन टू ए पेशेंट. वो सफर कर रहा है ना? तो एलन टेस्ट करना है, मिड प्रोन पोजीशन करना है, साथ बैठना है, एनेस्थीसिया देना. इतना सीखोगे, अब आगे चलते. नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड. जब भी हम एबीजी कहते हैं, ये फुल स्क्रीन हो रहा है क्या? फुल स्क्रीन. बेटे अवधेश, ये फुल स्क्रीन कर दो एक बार. सो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे. ये 2-3 क्लास होगा एबीजी का. उसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा मॉडल को चेंज कर दिया. अब मैं एक साथ एग्जाम नहीं लूंगा, जो पढ़ा रहा उसका एग्जाम लूंगा, है ना? 3 क्लास 1 एग्जाम, ठीक है? नहीं तो भूल जाओगे. फुल, ठीक है. मैंने बहुत सिंपल स्लाइड्स बनाए. दीज आर ऑल रिसोर्स स्लाइड्स. इट हैज बीन शेयर टू योर ग्रुप. अभी मैं जब पढ़ाऊंगा ना, मैं और सर आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे. दीज आर ऑल रिसोर्स. और जो भी पीछे इशिका है, शी इज माई पर्सन. कोई भी आपको कोई भी कंप्लेन या कोई भी रिसोर्स चाहिए, इशिका को आप कांटेक्ट करोगे. ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा और प्लस आपको ये स्लाइड मिलेगा. इतना रिसोर्स. मेरा यूट्यूब, मेरा हैंड्स ऑन, सर का हैंड्स ऑन और स्लाइड्स. और क्या चाहिए आपको? ये इंटरनेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन है नर्सिंग का. अगर आप इसको निकाल लो, कोई भी एग्जाम दे दोगे, आप पास कर जाओगे. अब हम जब एबीजी करा है, इट्स अ क्विक वाइटल विंडो टू ए पेशेंट रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक. ये खिड़की है एक इंसान को झांकने के लिए. ये इंसान को अगर आप झांकना चाहते हो अंदर से कितना बीमार है, उसकी खिड़की है एबीजी. इट इज ए क्विक vital window into a patient's respiratory and metabolic state. Respiratory means सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना. Metabolic means kidney, acid, alkali. तो it's a quick window. ये विंडो ही अगर आपका खराब हो तो कैसे अच्छा आप नर्स कंसल्टेंट बनोगे? नहीं बनोगे ना. नंबर 2, it has got 3 things. Oxygenation. इस विंडो के जरिए you can see how good is a patient oxygenated. That means it assesses how well the oxygen is reaching the blood. Oxygen, how good the oxygen reaching the blood, to the tissue. Number 2, acid bed balance reveals the pH disturbance affecting every organ system. जैसे आप जानते हो, even if when you cook a food, you need the right salt. ज्यादा salt दोगे तो food खराब हो जाता है. Less salt also spoil, it doesn't give you. Similarly, every human being has a right, you can say, the acid. This is measured by hydrogen ion concentration. If you go this side, you're sick. If you go that side, you're sick. There is a range. Uske beech mein gaadi. It's something like you're driving a vehicle on a eco speed. If you're driving at 100 km in city, you will hit. If you drive at less than 30-40 km, somebody will hit you. So something like eco speed. So that means pH is something like your eco speed of the body, 7.35 to 45. So that's the second thing, is that it reveals the pH disturbance. And third, it shows how effectively carbon dioxide is cleared. The most important representation of respiratory system is ventilation. Now, what is ventilation? Throwing the carbon out. If your ventilation is not good, then your carbon will be retained. So these 3 things are maintained. So
Nurses are often first to notice the trends. Why it is important? The nurse should be the best person. In America, doctors are not there in the ICUs. It is a respiratory therapist. It are nurses who manage it. Ventilation strategies are done by you people. So the nurses are often the first to notice the trends, and early recognition supports timely escalation and treatment. So the point of entry is ABG. That's why I said, whenever a patient comes, do the ABG properly. It has to be artery, not vein. You have to do the Allen's test, otherwise you can damage the patient arteries. You have to keep in mid-prone position so that you get the maximum visibility of the artery. Then it has to be local anesthesia, because why? Pain causes hyperventilation. अगर मुझे दर्द हो ना, मैं सांस तेजी लूंगा. Moment there is a pain in your artery, because the superficial of the artery is painful, adventitia. Moment is painful, you hyperventilate. Your carbon dioxide level, you will wash off. It can suddenly show respiratory alkalosis. So once you are giving pain on the artery, you are hyperventilating. So you have to localize the anesthesia. So these are the protocols. It's not that khade hoke aise khar 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 kar rahe ho. No, this is wrong. Sit at the edge of the bed, take time, explain the procedure. That's why in intensive care, the most important thing I will always be talking about soft skill. Explain. उस दिन भी मैंने NIV जब पढ़ा रहा था bedside में, explain what you're going to do. Respect women, take permission. Respect a patient, take permission. ये हम आपकी शरीर के बारे में जानेंगे. It's a window through which we've come to know about your system. I am going to hit an artery. I assure you, by explaining the process, pain becomes 40% less. Explaining the patient, your problem becomes easier. Explain, follow the Allen test, take local anesthesia, do the test. Okay? Now, so nurses are the first person. Secondly, next क्यों नहीं जा रहा? अवधेश कहाँ है? हाँ, आपका फोन नंबर है ना? हर आईसीयू के 5 फोन नंबर्स है, याद रखना इसको. 1 2 3 4 5 ये नंबर याद रखना है. रटना है ही. आपको मोबाइल फोन नंबर आपका याद है ना? तो हमारे शरीर के 5 नंबर्स है. विल यू ऑल रिमेंबर इट? फर्स्ट इज पीएच. इट शुड बी बिटवीन 7.35 to 45. ये नंबर याद रखना है आपको. जरूरत पड़े तो अपने फोन के नोट पैड में सेव करो. दिस नंबर, इफ यू वांट टू वर्क इन आईसीयू, दिस 5 numbers, इट शुड बी, यू शुड वर्बटम, यू शुड लर्न इट. सो पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 to 45. ऐसे नहीं बोलोगे सर हमें तो पढ़ाया गया तो 7.5 होना चाहिए, हमने तो ऐसे ही देखा. ऐसा हमने कुछ नहीं होता. There's only one rule book in the book. 7.35. Second is that PCO2 कितना होना चाहिए? 35 to 45. पीएच क्या बताता है? बॉडी एसिड है या एल्कली है? क्या बोलता है? एसिड है, एल्कली भी खराब है, एसिड भी खराब है. हमें चाहिए नॉर्मल 3.52 न्यूट्रल पोजीशन में. PCO2 हमें रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, हाउ गुड इज योर लंग, वेदर यूर फैटीग और नॉट, वेदर यूर वेंटिलेटरी, हाउ. बहुत ज्यादा काम करना भी लंग्स के लिए ठीक नहीं हो, थक जाएगा. ओवर एक्टिव लंग इज ऑल्सो बैड, हाइपर वेंटिलेटिंग लंग इज ऑल्सो बैड, एंड लंग विच इज fatigue, it is also bad. So what will decide your lung is PaCO2. Will you remember this number? 35 to 45. ये याद रखना पड़ेगा. कल को आप ये नहीं कह सकते मुझे नॉर्मल पल्स याद नहीं है. It should be here always. Number 3, bicarbonate talks about the metabolic component. How good is your kidney doing? How is your metabolism? क्योंकि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के सीसा इफेक्ट होता है. एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो लंग्स का फैक्टर घटता है. सो मेटाबॉलिक इज बाइकार्बोनेट. ये कितना होना चाहिए? 20 to 26 मिलीमोल्स. ये होता है मिलीमीटर मरकरी. PCO2 ये होता है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ये भी किस यूनिट्स में होता है वो भी याद रखना चाहिए. PO2 80 to 100. ये दिस एक्चुअल नंबर. कई बार लोग तो सर वो 65 है, ठीक नहीं. नॉर्मल इज 80 to 100. मेनी टाइम्स कई बार हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता, दैट इज अ डिफरेंट, बट यू शुड रिमेंबर दिस इज दैट.
that talks about oxygenation. And SpO2, oxygen saturation, should be 95 to 100. Now सारे बोलो मेरे साथ. पहला नंबर क्या होना चाहिए? Read me out. pH should be PCO2, bicarbonate, PO2, SO2. सारे अपने फोन से ये पिक लो, इसका पिक लो. You should know this number. I want everybody to show this number. क्यों डॉक्टर संजीव? ठीक है, नेक्स्ट में करना. फाइव स्टेप्स, 5 रूल. 5 रूल. मैं हर चीज जो पढ़ाता हूं उंगली से पढ़ाता हूं. 5 5 10 में खेल होता है. 5 स्टेप्स, 5 उंगली, 5 स्टेप्स. चेक पीएच. 7.35 से नीचे है तो एसिडिक है, 7.45 से ऊपर है तो एल्कली है. चेक पीसीओ2. आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी. मैं सारा बताऊंगा. पीसीओ2 चेक करो. लो हुआ तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, हाई हुआ तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. आप समझ गए? पीसीओ2 से मतलब रेस्पिरेटरी कंपोनेंट. बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट लो हो तो क्या हुआ? एसिडोसिस हुआ. हाई हुआ तो एल्कोलोसिस हुआ. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. मैच द पैटर्न. पेयर करना पड़ेगा. पेयर होता है ना सीसॉ. पीएच किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट. क्या होता है कि ये चीज याद रखना. ये पेन, ये हाँ लिखो, एक लिखो. pH is equal to what lung does. DO नहीं, ठीक है. lung what lung does, OES, and divided by what kidney does. ये याद रखोगे. ऊपर लंग, नीचे किडनी. ठीक है, इतना याद रहेगा. तो ये बढ़ेगा कब? जब ये बढ़ेगा या ये घटेगा. सो हाई पीएच इज कॉल्ड एल्कलोसिस. क्या कहते हैं? सो एल्कलोसिस बढ़ेगा कब? जब लंग्स का क्या होता है, इसमें लिखना CO2 डिवाइड बाय बाइकार्बोनेट. आओ देखो, लंग का नंबर क्या है? CO2. कितना सिंपल कर दिया. इज इक्वल टू CO2 डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट. हाँ, HCO3. ठीक है. अब देखो HCO3. इसके मतलब लंग का रिप्रेजेंटेशन CO2 और किडनी का रिप्रेजेंटेशन बाइकार्बोनेट. प्लीज सिट डाउन. तो पीएच कब बढ़ेगा? जब CO2 बढ़ेगा. ऊपर को क्या कहते हैं? लंग्स. सो हाई लंग इज कॉल्ड हाई रेस्पिरेटरी. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस when the PCO2 increases. या अगर बाइकार्बोनेट नीचे हो जाए तो पीएच बढ़ेगा. तो नीचे वाले को हम कहेंगे मेटाबॉलिक. इसमें 1 मिनट लिखना, रेस्पिरेटरी डिवाइडेड बाय मेटाबॉलिक. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 विल इंक्रीज एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट विल डिक्रीज. है ना? ये बात क्लियर हो गई? हाँ, आप समझ गए? नीचे वाला घटेगा तभी तो ये ऊपर आएगा. CO2 अगर ऊपर जाए वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. ये नीचे आए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. ये कम हो गया तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है. ये बढ़े तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. समझ में आ गया? इतना सिंपल है. विल यू रिमेंबर दिस? व्हाट लंग डज बाय व्हाट किडनी डज. व्हाट इज PCO2? इज इट ओके? तो हमने क्या किया? चेक बाइकार्बोनेट, आइडेंटिफाई द मेटाबॉलिक कंडीशन. अगर ये कम है तो ये मेटाबॉलिक है. वो हम बाद में बताएंगे कौन सा प्राइमरी. अगर ये ज्यादा है तो अल्कोहलिक है. तो लो बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. ठीक है. देन आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी कंडीशन. अगर ज्यादा PCO2 है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस,
कम PCO2 है तो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। वेरी सिंपल। तो हमने सीखा। फिर मैच द पैटर्न, पेयर देखो क्या होता है। 48 घंटे बाद बॉडी ना बैलेंस कर जाता है। अगर CO2 बढ़ेगा तो कौन नीचे को क्या होना चाहिए, घटेगा या बढ़ेगा, उसको भी बढ़ना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कंपेंसेशन क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। आप समझ गए ना, ये बढ़ेगा ना कंपेंसेशन। देखो सॉरी, अगर ये बढ़ रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसका कंपेंसेशन क्या होगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। सो व्हाट इज द कंपेंसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। नीचे का बढ़ने का एल्कली है ना। व्हाट इज द कंपेंसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। क्यों, नीचे को बढ़ने से एल्कली बढ़ेगा। व्हाट इज द कंपेंसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप समझ गए ना। अगर PCO2 घटे तो बाइकार्बोनेट घटेगा, बाइकार्बोनेट घटने को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो व्हाट इज द कंपेंसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। व्हाट इज द कंपेंसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? क्लियर है ये? मुझे लगता है आपको क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? आप आओ यहां, बाहर आओ, वैभव समझाएगा। वैभव इसको समझाओ। देखो जो CO2 होता है ना, CO2 यहां जाओ, CO2 मतलब एसिड। लिखो, तुम लिखो, बोर्ड में लिखो, जाओ, गो एंड वैभव विल टीच यू। देखो CO2 मतलब होता है ना, पहले तो पता चलेगा CO2 कौन सा, CO2 कहां से लंग है, CO2 इक्वल टू लंग और बाइकार्बोनेट किडनी। ठीक है, CO2 एसिड होता है, CO2 एसिड। CO2 बढ़ता है तो pH कम होगा, एसिड बढ़ेगा तो एसिडिक होगा ना। एसिडिक मतलब pH अगर ऊपर हो रहा है तो अल्कलोसिस हो रहा है, pH नीचे हो रहा है तो एसिडिक हो रहा है। तो CO2 मतलब बढ़ रहा है तो एसिडिक हो रहा है, मतलब pH कम होगा। ठीक है, उसको कंपेंसेट कैसे करेंगे, जैसे इस ग्राफ पे देखिए तो CO2 अगर बढ़ रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एसिड को बोलेगा भैया तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक है, एसिड को थोड़ा अपने से खींचने की कोशिश करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। बाइकार्बोनेट बेस की तरह है, समझ रहे हो ना। बाइकार्बोनेट बेस अल्कलाइन मीडियम की तरह, जो एसिड को शांत करेगा। तो एसिड ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो बाइकार्बोनेट क्या बोलेगा, अरे भाई और ज्यादा बढ़ेगा ताकि उसको शांत करे। ठीक है, जैसे सेम सिमिलर थिंग, अगर जैसे एग्जांपल जैसे ले लो, CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ा तो फिर बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा CO2 को उसको शांत करने के लिए। अगर CO2 कम हुआ तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो पीएच को हमें 3.5 पर रखना है। CO2 कम होगा तो अल्कलोसिस हो गया, तो बाइकार्बोनेट लगा तो अल्कली तो है ही है, तो मैं थोड़ा कम हो जाता हूं, तो वो ऐसे ही डले। ऐसा हो गया। तो आप इस फार्मूले से, इज इट क्लियर? ये बढ़ेगा, ये 5 है तो इसको भी 5 होना है, ये अगर 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी ऊपर है, किडनी नीचे है, तो रेस्पिरेटरी बढ़ेगा तो किडनी नीचे जाएगा, डिनोमीटर। आप समझ गए ना, सिंपल जो डिवाइड वाला रूल कहते हैं। इज इट क्लियर? इसकी पिक ले लो आप लोग। एसिड और अल्कली का कांसेप्ट समझना है ना, एसिड और अल्कली। एसिड ज्यादा बढ़ेगा तो अल्कली ज्यादा बढ़ेगा, एसिड कम होगा तो अल्कली कम होगा, खत्म बात। नेक्स्ट, इसके बाद हमें देखना पड़ता है, आज हम बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं, क्या ये कंपेंसेशन पूरा हो गया, मतलब बॉडी पूरी तरह ठीक हो गया, या पार्शियली कंपेंस, वो बात की बात है, हम बाद में पढ़ाएंगे। अब देखो, ये सारे पिक लो इसका। रेस्पिरेटरी एसिड में क्या होगा, पीएच विल बी लेस और मोर, लेस, जोर से बोलो। PCO2 क्या होगा, हाई और लो, हाई। बाइकार्बोनेट इसमें नॉर्मल होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच विल बी हाई, PCO2 विल बी लो, बाइकार्बोनेट विल बी नॉर्मल। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच विल बी लो, PCO2 विल बी नॉर्मल, बाइकार्बोनेट विल बी लो। इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होगा, हाई पीएच होगा और बाइकार्बोनेट हाई होगा। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया क्या? ये पिक लो हर एक को। मेमोरी एड क्या है, इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पीएच एंड PCO2 मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पीएच एंड बाइकार्ब मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप समझ गए ना? इन रेस्पिरेटरी जो PCO2 दे मूव ऑपोजिट डायरेक्शन,
और इन मेटाबॉलिक दे पीएच एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप समझ गए ना, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्यों, नीचे है ना, और वो ऊपर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो मेटाबॉलिक में सेम डायरेक्शन मूव करेगा, ऊपर का हाई है तो इसका भी हाई है, उसका नीचे है तो इसका भी नीचे है। इज इट क्लियर? इसकी पिक लो। नेक्स्ट। हाँ बताओ रोम। रोम देखो, जैसे एक निमोनिक का रोम से ऐसे याद कर लो, रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी मतलब रोम का बेसिक कांसेप्ट है पीएच और पीसीओ का रिलेशन देखना है हमें, पीएच और पीसीओ का रिलेशन देखना है। तो रोम मतलब आर 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 मतलब रेस्पिरेटरी, वो मतलब ऑपोजिट, एम मतलब मेटाबॉलिक, ई मतलब सेम, ऐसे करके। वेरी गुड। रोम याद रखना, इसको लिख दे इसमें रोम लिखो। वेरी गुड, रोम याद रहेगा। रेस्पिरेटरी मींस ऑपोजिट, मेटाबॉलिक मींस इक्वल। और ये रिलेशन है पीएच और पीसीओ2 का, पीएच वर्सेस पीसीओ2, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी में ऑपोजिट है, रेस्पिरेटरी में पीएच बढ़ेगा तो पीसीओ2 कम होगा, और पी और तो रेस्पिरेटरी मतलब ऑपोजिट, मतलब पीसीओ2 बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो पीसीओ2 बढ़ेगा। मेटाबॉलिक में पीएच कम होगा, मेटाबॉलिक में सॉरी बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक में क्या होगा, जस्ट अपोजिट उसका, तो नीचे है ना उसका, समझ गए ना, मतलब ये पीएच और पीसीओ2 का रिलेशन है इसमें। मेटाबॉलिक में सेम है, पीएच बढ़ेगा तो पीसीओ2 बढ़ेगा, पीएच कम होगा तो पीसीओ2 कम होगा, समझ गए ना। ठीक है। एनीबडी हैज एनी इश्यू? पूछो। नेक्स्ट। अब बॉडी क्या होता है, तीन पोजीशन में हो सकता है। आइदर उसको कंपेंसेशन मिला ही नहीं, अनकंपेंसेटेड, दैट मींस पीएच एबनॉर्मल, अदर सिस्टम नॉट रेस्पॉन्डेड, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला गया, अनरेस्पॉन्सिव है, ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पार्शियली कंपेंसेट हो सकता है कि पार्शियली ठीक हो गया। तीसरा होता है फुल्ली कंपेंसेट। ये तीन सिचुएशन ही हम एबीजी के थ्रू पा सकते हैं। आइदर इट इज अनरेस्पॉन्डिंग, अनकंपेंसेटेड, partially compensated and fully compensated. Next. So key nursing thing is that sample handling, Allen test, clinical correlation and documentation. अच्छा, documentation में सबसे important चीज है एबीजी रिटर्न, एक ईसीजी रिपोर्ट। आप किस परसेंटेज में एबीजी ले रहे हो लिखना बहुत जरूरी है। ऑल एबीजी शुड बी डन ऑन एयर। लिखो इसमें ऑन एयर। ऑन एयर मतलब A5 कितना होता है एनआर में 21। एबीजी में एंट्री करना पड़ता है, यहां एबीजी मशीन में एंट्री करना होता है। A5 लोग करते नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड A5 शुड बी एंटर्ड, बिकॉज टेम्परेचर के कारण हमारा एबीजी शिफ्ट हो सकता है। सो क्या होना चाहिए, ऑन एयर। ऑन एयर एबीजी लेना है A5 to 21। तो मेरे साथ बोलो, एबीजी करने के लिए सबसे पहले मैं जैसे बोलूं वैसे रिपीट करना। द फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सप्लेन द प्रोसीजर। सेकेंडली सिट नेक्स्ट टू द पेशेंट। थर्ड इज दैट कीप द हैंड इन मिड प्रोन पोजीशन। यह है मिड प्रोन, बेगर्स प्रोन, किंग सुपाइन, मिड प्रोन। मिड प्रोन, हाउ विल यू डू मिड प्रोन? पुट ए लिटिल टॉवल और ए माइक्रोपोर। थर्ड इज दैट रिड्यूस द पेन. Take the least 0.5% LA on the surface of adventitia, because you need sample from the artery, not the vein. Then the pain. Third is that you have to minimize. If you give more, heparinize. This syringes are heparinized. Heparin has a very high FiO2. I think heparin F5 is 310. So you can dilute the oxygenation. So heparinize उतना ही होना चाहिए ये नोजल तक। इतना डाल दोगे ना हेपरिन, एबीजी गलत आ जाएगा। So heparinize the needle up to the nozzle, because heparin has very high oxygen level, 310 if I remember. Then immediately it should be stayed, because अगर गर्म होगा तो गलत आ जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मैं बोलूंगा। Preferably, if it is in the hospital, immediately it can go. If you are sending it outside, it should be in an ice pack. Am I right? Yes, sir. You have to cool. This is for today. That's all. Thank you so much. Very informative. Allen test is even for arterial line is very important. I want everybody, we have brilliant people like Dr. Sanjeev and Dr. Vaibhav.
प्लीज मेक देम योर गुरुज बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल देयर. ये आप लोगों का गुरु. देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं गुरुकुल, ये पाठशाला है. ऐसा पढ़ाई कहीं नहीं होती है हिंदुस्तान में. होती है? डिटेल बताएंगे. कहां कोई पढ़ा रहा है आज की तारीख में? ये गुरुकुल मिला है आपको, पाठशाला. इनको पकड़ लो, सीखो इनसे, हमें बताओ. सो डेवलप ए गुड सॉफ्ट स्किल, हैव गुड bedside manners, follow the rules. If the rule you follow, you never go wrong in life. And remember, today's nurses are for the future world. You are going to cater the world. Because I work for Government of India, we are looking for international nurses. आप ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान. No, you should be ready for the world. Follow the rules. Thank you so much. Next.